Hello everyone, welcome to class, and in this class we will discuss the topic that is force acting on a current carrying conductor in uniform magnetic field, right? So students, we have discussed in previous lectures also that whenever a charged particle moving in region of magnetic field, yes, a charged particle is in magnetic field, so it experiences a force that is F is equals to Q V cross B, right? And we have studied also that electric current means the charges are flowing in conductor like this. That means if there is a conductor which is carrying current I, the charges are moving due to the motion of charges. Each and every charge would experience a force, and the magnitudes of force, this F is equals to Q V cross B, when conductor placed in a magnetic field like this. Okay, and this magnetic field is type of inward magnetic field. Inward magnetic field, right? So the charge particle is on a particle, right? And that particle makes a conductor. Okay, so naturally we can experience a force on the conductor because all each and every charges experience a force due to the magnetic field. Okay, so charge is on a particle and the particle makes a conductor, so we can experience the force on the conductor, right? So how much should be that force which visible to us? So we can find it out doing very small calculation, right? So let us absorb that this is a uniform magnetic field like this. Okay, and a conductor have placed on the region of magnetic field, right, of length L. Okay, and the making an angle theta with the magnetic field. This is magnetic field, right? And current in this conductor, this I, right? You know very well when a current flowing in this direction in the wire, right? So what is the directions of electrons which are present in the conductor? Yes, opposite direction of current. In this direction the electrons are moving because electrons is a negative charge, so in these directions the charges are moved. Okay, and positive charge move in towards the current, right? And what is the velocity of this charge? Yes, this is a drift velocity. आपने पढ़ा हुआ है जब भी कोई भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना है, राइट? और आपको ये पता है जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, वो एक ड्रिफ्ट, उनमें क्या है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, राइट? एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वी नो द relationship between current and the drift velocity. What is that? That is I is equals to VD, V ना बोलते इसको, VD E N A, right? Where the VD is drift velocity, E this is the charge of electrons, and N the electron density, okay, number of free electrons per unit volume, and A is the cross sectional area of the conductor, right? L the length of conductor, A is the area of cross sectional area, and theta is the angle between
conductor and between the conductor motion of charge particle and the magnetic field. Okay, so we know that whenever a charged particle is whenever a charged particle is moving in magnetic field, so it experience a force. What is that? F is equals to Q V cos V. Okay. नाउ आपको ये पता है जब आपका एक चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. क्या करता है? F इज इक्वल टू क्यू वी बी वी क्रॉस बी. राइट. लेट्स सपोज दिस इज ए कंडक्टर. ओके, इसे हम एक फिगर से समझेंगे. ये आपका एक कंडक्टर है. हो बड़ा बन गया. दिस इज ए कंडक्टर. ओके, and moving it have many charges, right? Because what is current carrying wire? Many charges inward are in motion, right? So ये आपके चार्जेस सारे मोशन में है और एक चार्ज, हर एक इलेक्ट्रॉन्स एक चार्ज का है, एक चार्ज कैरी कर रहा है. राइट. तो सो आपको पता है एक चार्ज पार्टिकल और ये जो आपका कंडक्टर है प्लेस्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. राइट. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका नेचर क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो है बट इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ऑब्वियसली ये जो कंडक्टर के इनसाइड में जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. तो सभी जो चार्ज है क्या करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे लाइक दिस. ओके, तो सो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपीरियंस द फोर्स ऑन द कंडक्टर. अब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना, तो आपका कंडक्टर क्या है? कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी ऊपर को जाएगा. राइट. सो हम क्या करना है? हमें एक चार्ज का पहले ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है इस चार्ज का फोर्स फाइंड कर लो. राइट. इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसको. ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं. फोर्स ऑन वन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स. हमने क्या लेना है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लेना है. जो इलेक्ट्रॉन्स की टूवर्ड्स जो भी मूवमेंट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स लिया. राइट. क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q. व्हाट इज द चार्ज? अब क्या है? Q है, तो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है. हम क्या लिखेंगे? E V क्या है आपका? वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो VD क्रॉस B. राइट. ये इक्वेशन 1 आ गई. आपकी वेक्टर फॉर्म में था, इसको इसकी मैग्नीट्यूड्स लिख लेते हैं. V इज इक्वल टू E V D B साइन थीटा. इक्वेशन 1. नाउ वी विल टेक अ स्मॉल एलिमेंट of this conductor. राइट. बिकॉज आपने क्या लिया? अब आपने क्या करना है? इस पूरे एलिमेंट का जो पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग आपने फोर्स लेना है ना. फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. हमने एक चार्ज का ले लिया. अब हम क्या करेंगे? इसमें एक स्मॉल एलिमेंट का लेंगे. स्मॉल एलिमेंट का लेंगे तो आपका फोर्स भी स्मॉल होगा. तो आपको ये पता है जब भी स्मॉल फोर्स होगा उसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एक कंप्लीट फोर्स मिल जाएगा. राइट. सो we take let's suppose this is a small current element. We will take a small element of length dl. So force on all P plus small elementary charges. Electrons, small elementary charges. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? फोर्स देखेंगे.
फोर्स ऑन, ये जो आपका एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट है, यहाँ पे जो भी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से कितना फोर्स प्रोड्यूस हुआ। अगर इससे हमें फोर्स निकाल लिया तो उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमें कंप्लीट कंडक्टर का फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। सो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस स्मॉल एलिमेंट्री चार्जेस, राइट। जो स्मॉल एलिमेंट्री चार्जेस में है इसमें फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्यू ई, सॉरी ई, इसमें चार्ज क्या होगा, राइट, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अभी लिख लेते हैं ई वी डी बी साइन थीटा, अभी समझते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें चार्ज क्या होगा आपका, मीन्स चार्ज क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो चार्ज होगा। लेट इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो लेट सपोज लेट n is the total number of electrons in small elementary region, small elementary region, okay, now ओके तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन F इज इक्वल टू ई क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे n टर्म्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करें, सिंपली n e v d b साइन थीटा, राइट, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द n, यहाँ पे लिखा आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्मॉल एलिमेंट्री, तो व्हाट इज द n, n क्या है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं कि हाउ मेनी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, राइट। कैसे, तो हियर वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, number of electrons per unit volume into total volume, ठीक है, क्लियर है। देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिया, नंबर n क्या लिया था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक डीएल लेंथ का हमने स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है, राइट, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा, राइट, तो इसमें इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। अब हमें ये तो पता नहीं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें ये पता है कि इसका वॉल्यूम क्या है, ADL, राइट, इसका एरिया A हो गया और लेंथ हो गई DL, तो ADL इसका क्या है, वॉल्यूम है। लेट सपोज पर यूनिट वॉल्यूम, लेट सपोज यहां ले लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो हमने क्या लिखा, पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, Ni, ठीक है। नंबर ऑफ n क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n, ठीक है। एक तो एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ni, ओके। अगर 2 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2Ne, राइट। 3 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज 3Ne, मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है उसके पास, n। अगर 2 वॉल्यूम का हो गया तो 2Ne, 3 का हो गया तो 3Ne। लेट सपोज अब इस जो ये स्मॉल एलिमेंट लिया हुआ है इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, ADL, यही तो है। A क्या हो गया, इसका एरिया, और DL क्या हो गया, इसका लेंथ। ADL ले लिया हमने, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, V क्यूब होता है, मीटर क्यूब होता है ना, मीन्स लेंथ का क्यूब होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्क्वायर ले लिया और एक लेंथ ले ली, राइट। तो ADL तो कितना हो जाएगा, ADL NE, राइट, सॉरी NE लो इसको, ठीक है, N इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। सो बस यही क्या है आपका N, स्मॉल n, कैपिटल N, राइट। सो N इज इक्वल टू क्या हो गया, ADL N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N हो गया और
टोटल वॉल्यूम क्या हो गया AdL। ओके, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n इंटू AdL। n इज इक्वल टू हो गया आपका NaDL, राइट। ये जो n की वैल्यू है इस इक्वेशन n, पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन, राइट। यस, ओके, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। Put the value of n in equation number 2, f is equals to n क्या है, n a d l e v d b sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3, राइट। ये जो आपका फोर्स है ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, राइट। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स ऑन एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, कंप्लीट कंडक्टर। तो सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 ऑफ इक्वेशन 3, तो डी एफ, सॉरी ये डी एफ होगा, स्मॉल एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ लिया हुआ है। इंटीग्रेटिंग इज इक्वल टू, अब देखो इसमें एन क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन स्मॉल एलिमेंट, तो एन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। साइन थीटा, थीटा भी क्या है आपका, कांस्टेंट है ना, यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, तो थीटा तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। आपका वेरी क्या करेगा, केवल डीएल, राइट। सो अगर इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या बच्चों, अभी इससे पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, आपको पता है कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट का फ्लो हो रहा है, राइट। करंट का फ्लो हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सो एक इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशनशिप थी, क्या थी, I इज इक्वल टू वी ना, वी एन ए, सॉरी वीना बोलते ना, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी हो गई, ई एन ए, इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं वीना बोल के, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज वीना। आई इज इक्वल टू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी बोल सकते हैं आप, वेलोसिटी वी, ई आपका चार्ज, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। तो यहां पे देखिए, इसको इस टर्म में लिख लेते हैं, वी डी ई एन एंड ए, ठीक है। आपके पास बचा क्या, वी साइन थीटा, और आपके पास इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो स्मॉल एल, ओके, राइट। सो एफ इज इक्वल टू आई, इसको आई ले लेते हैं, ये हो गया करंट आपका आई, ए आई बी साइन थीटा, और एल, ओके, आई बी साइन थीटा एल, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन, आई एल बी साइन थीटा, ओके, आई बी एल साइन थीटा, इसको आई लिख लेते हैं, आई, करंट आई, ओके। तो एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। स्टूडेंट्स, व्हाट इज थीटा, तो आपके पास जो फोर्स है, नाउ वी विल फाइनली, नाउ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, राइट।
नाउ इस पे स्पेशल केस होंगे, कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं इसका। व्हेन द फोर्स मैक्सिमम ऑन दिस ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो आपका साइन थीटा है, थीटा का ऐसा कौन सी वैल्यू होती है जब आपका ये फोर्स मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है आपका मैक्सिमम व्हेन फोर्स इज मैक्सिमम। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 1 में होता है, और साइन मिनिमम कब होता है, 0 में, ठीक है। साइन थीटा 1 मैक्सिमम 1 में, और साइन थीटा 1 कब होता है, जब आपका जो कंडक्टर है प्लेस्ड हो मैग्नेटिक फील्ड में एज ए परपेंडिकुलर, राइट। मीन्स एंड थीटा क्या होना चाहिए आपका, व्हेन थीटा विल बी 90, व्हेन थीटा विल बी 90, सो द फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स will obtain, right, because F is equals to I B L, साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, आई बी एल। इस टाइम पे आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स, राइट। दिस इज अ मैक्सिमम फोर्स, राइट। एंड अगर मिनिमम फोर्स की बात करें, स्पेशली वैसे जो मोस्टली जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे यही आपको मैक्सिमम फोर्स की आई बी एल ही यूज होगा, राइट। और जब आपके पास मूविंग चार्ज पार्टिकल था, है ना, मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात थी, तो उस टाइम पे आपका क्या था, एफ इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा, राइट। इसमें क्या है, आई वी एल साइन थीटा, उसमें क्या था, ई वी बी, ठीक है। चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड ऑन वेलोसिटी, ओके। तो सो जब मिनिमम की बात करेंगे, यहां पे लिख लेते हैं इसको, मिनिमम कब होगा आपका, मिनिमम फोर्स कब होगा, जब आपका थीटा 0 और 180 हो, ओके। तो थीटा आपका 0 हो जाएगा, तो एफ फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स आपका जब आपका कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी आर पैरेलल टू ईच अदर, या अपोजिट डायरेक्शंस, या अपोजिट एंड इक्वल इन डायरेक्शन, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा उस टाइम पे, 0 होगा, ओके। सो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ओके बाय।